Good evening everyone, this is the 7th chapter understanding of data. Yesterday I taught you regarding the data introduction, then importance of data, then I taught you about types of data, structured and unstructured data, that is tabular format, and unstructured data, that is the examples like about newspaper, then news article. Then I taught you about data collection, then data storage, in which format data at store, then data processing. Also I taught you, this is the diagram of data processing: raw data, numbers, text, image, whatever we have to process that data, and then we got the information in the form of table, chart and text. Then this is the another data processing cycle. We have input, we have to process it, and finally we got the output, that is data collection, data preparation, data entry. Then processing में क्या आएगा? Storage, retrieve, classify, update, and finally output में आएगा reports, results, processing system. Okay, now we will see about statistical techniques for data processing. Statistical means mathematical operations of we have over here. So given a set of data values, we need to process them, get information. There are various techniques which help us to have preliminary understanding about the data. So when we need to process the data, before processing it, we need to first understand the data, and then we have to use different techniques to process that data. So website handling, online filling of student details for a competitive examination, and generating admit card. Okay, so this is one of the example of statistical technique for data processing. We have one of the website, and we have to fill that website online for the students' details for the competitive examination, and for that purpose we have to generate the admit card. So what we need to do, स्टूडेंट डिटेल्स में क्या क्या आएगा? उसमें नेम आएगा, एड्रेस आएगा, क्वालिफिकेशन, मार्क्स, मोबाइल नंबर, फोटो, साइन, सेंट चॉइस, ऑनलाइन पे, पेमेंट डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, अदर मोड ऑफ पेमेंट that we have, like as the entity, or we can say as the what we have entity, or we can say activities. Okay, these are the entity or activities we have. Then what else we have to do? We have to process it. So process, fill the details in the correct format. For eligibility criteria, fees paid or not, that we have to check. Photo signature upload or not, that we have to check. So finally we have to find out that the applicant in the list of is eligible or not, that all are in the process. Finally what result we got? Examination admit card specifying roll number, center address, date and time of test. Okay, this finally we got. So this is the statistical technique, that we need to process it. We have some data we need to process, and finally what we get? The result. That like a mathematical calculation we have in statistics. So that is only the statistical technique. We need to process something, and finally we get the output. So a bank handling withdrawals of each cash through ATMs of its own branch. So इसमें क्या होगा? कैश विड्रॉ करना है हमको, एटीएम से अपने ब्रांच से ही विड्रॉ करना है, तो इसके लिए हमारे पास कुछ डेटा होगा, एटीएम पिन होगा, अकाउंट टाइप होगा, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर, एटीएम लोकेशन, फ्रॉम वेयर मनी हैज़ विड्रॉन, डेट एंड टाइम एंड अमाउंट टू बी विड्रॉन. ये सारी चीज़ें होंगी एज ए एंटिटी और एक्टिविटीज़ वी हैव. तो उसके बाद हम क्या करेंगे? इसके ऊपर चेक करेंगे कि पिन नंबर, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, इफ सेटिस्फाइड देन रिडक्शन ऑफ अमाउंट फ्रॉम दैट अकाउंट, एंड काउंटिंग ऑफ रुपीज एंड इनिशिएट प्रिंटिंग ऑफ रिसिट वी हैव. सो इसमें क्या होगा? जो भी हमारे पास जो डेटा होगा ना, उसी डेटा के ऊपर हम लोग प्रोसेस करेंगे. पिन नंबर वगैरह, एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस वगैरह, ये सब चेक करेंगे हम. अमाउंट वगैरह ये सब चेक करेंगे हम. And finally what we got? Currency notes, printed slip with transaction details we have. ये सब चेक करने के बाद हम लोग
करेंसी नोट्स चेक करेंगे, प्रिंटेड स्लिप चेक करेंगे विद ट्रांजैक्शन डिटेल्स। मतलब फाइनली हम जब एटीएम से पैसे निकालने के बाद जो भी हमको रिसिप्ट मिलेगी, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, उसका फाइनली आउटपुट हम लोग चेक करेंगे। ये हो गया हमारा एक सेकेंड एग्जाम्पल स्टैटिस्टिकल टेक्निक का। फॉर व्हाट? फॉर डेटा प्रोसेसिंग। देन इश्यू ऑफ ट्रेन टिकट। इश्यू ऑफ ट्रेन टिकट में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारा, इश्यू अगेंस्ट विद द डेटा करेक्टेड, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये एक यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे। इशू एंड ट्रेन टिकट की जर्नी स्टार्ट एंड एंड स्टेशन, डेट ऑफ जर्नी, नंबर ऑफ टिकट्स रिक्वायर्ड, क्लास ऑफ ट्रैवल, स्लीपर, एसी, अदर, बर्थ प्रेफरेंस इफ एनी, पैसेंजर नेम्स, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पेमेंट रिलेटेड डिटेल्स। ये सारी चीज़ें किस में आएगी? रेलवे रिजर्वेशन में आती है ये सारी चीज़ें। फिर हम प्रोसेस करेंगे उसके ऊपर। तो प्रोसेस करते वक्त पीएनआर नंबर चेक करना पड़ता है, टिकट अवेलेबल है या नहीं। कोच से चेक करते हैं, कौन से बर्थ पे वो चेक करते हैं हम, पेमेंट हुआ है या नहीं अच्छे से, कौन सा टिकट में कोई इश्यू है या नहीं, डिडक्शन हो रहा है या नहीं। देन लॉगिन वगैरह सब डिटेल्स चेक करने के बाद फाइनली आउटपुट क्या मिलता है? जनरेट टिकट विथ बर्थ एंड कोच नंबर और इशू टिकट विथ अ वेटिंग लिस्ट नंबर। सो हम क्या करेंगे? फाइनली टिकट जनरेट हो जाएगा, बर्थ वगैरह कोच नंबर हमको सब पता चल जाएगा। फिर बाद में इसके ऊपर कोई इशू है या नहीं वो चेक करेंगे। एंड फाइनली अगर उसमें कुछ आरएसी में अगर होगा तो हम वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। वो सारी चीज़ें हम आउटपुट में मिलेंगी। सो ये हमारा क्या है? सब स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है फॉर डेटा प्रोसेसिंग। ओके। देन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। भी इसमें क्या होगा पता है? ये सारे डिटेल टेबुलर फॉर्मेट में होगा। ये सब स्टैटिस्टिकल टेक्निक है फॉर डेटा समराइजेशन। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है इसमें? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ सिंगल वैल्यू दैट गिव अस सम आइडिया अबाउट द डेटा। डेटा के ऊपर कुछ आइडिया मिलेगी हमको, वो हम लोग चेक करेंगे। थ्री मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। ये तीन टेंडेंसी हमारी सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन मतलब मीन निकालना है हमको, एवरेज निकालना है उसका। मीडियन मतलब मीडियम निकालेंगे हम लोग, दैट इज लाइक 2 plus 3 is no 2 plus 3 is 5, so 5 divided by 2 is 2 is here and between that one will be there. So 2 from left side, 2 from right side, and in between there is one element, so that is your median. So what we have in central tendency, we have mean, median and mode of the data to get an idea about average, middle value of frequency of occurrence of a particular value respectively. Selection of measure of central tendency depends on certain characteristics of data. ओके। सो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा के ऊपर सब ये सब मीडियन टेंडेंसी रहता है। तो मीन मतलब समझ में आ गया आपको? मीन एवरेज निकालना रहता है ना, दैट इज योर मीन सिंपली। सो x1 x2 x3 जब टू xn वैल्यू रहेगा उसका समीशन निकालना, डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, ये हमारा मीन हो जाएगा। ओके। एग्जाम्पल दिया 40 स्टूडेंट्स होंगे उसमें से, तो उसमें से कितने हमको डेटा वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं वो हम लोग निकालेंगे इसमें से। ओके। देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे? जो एक एग्जांपल दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कितने वैल्यूज है? टोटल 9। सो 9 12 डिवाइड बाय 9, so it will be 101.33 centimeter. So mean is not suitable choice if there are outliers in the data. ओके। जब फ्लोटिंग पॉइंट में होगा तो इज नॉट सूटेबल चॉइस नहीं मिलेगी उसमें से। ओके। तो हम राउंड फिगर करके उसमें से कुछ वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। आउटलाइनर मतलब क्या है? एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यू इन कंपैरिजन टू अदर वैल्यूज ऑफ द डेटा। ओके। मतलब 9 12 जो है वो ज़्यादा है और फिर 9 डिवाइड करने के बाद वो कम वैल्यू आ रही है। तो यूजुअली आउटलाइनर्स आर कंसिडर्ड एज एन एरर सिंस दे कैन इन्फ्लुएंस अफेक्ट एवरेज और अदर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द डेटा। तो एक्सेप्शनली लार्ज और स्मॉल वैल्यूज रहता है वो आउटलाइनर। आउटलाइनर्स इन द डेटा मीन्स सुटेबल चॉइस इफ देयर आर आउटलाइनर्स इन द डेटा। ओके। कुछ लार्ज वैल्यूज है, कुछ स्मॉल वैल्यूज है, ये सब दिया हुआ है देखो यहाँ पे। ये सारी चीज़ें जो है वो 1 मीन से कुछ ज़्यादा है कुछ कम है और फिर उसको हमको 9 से डिवाइड करना है, एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो आउटलाइनर सिर्फ याद रखना, आउटलाइनर जब मीन में आता है तब वो स्टैटिस्टिकल डेटा जो रहता है हमारा वो क्या होता है? सूटेबल नहीं रहता है मीन उसके लिए। कब ज़्यादा वैल्यू रहती है, कम वैल्यू रहती है, उसी के कारण। ओके। तो
तो इसका हम यहाँ पे फ्लोटिंग वैल्यू मिला तो हम क्या करेंगे, उसको राउंड फिगर करके क्या निकालेंगे, 101 निकालेंगे। तो 101 यहाँ पे बैठता है इसके बीच में, ऑब्वियसली ये मीन वैल्यू है। ओके, तो यहाँ दिया क्या है, मीन इज नॉट अ सुटेबल चॉइस इफ देयर आर outliners in the data। मतलब outliner is an exceptionally large or small value in comparison to other values of the data। मतलब क्या कि comparison to other values of the data is exceptionally small और large value रहता है। मतलब ये इसमें से जो डेटा है उसमें से वो small भी है, large भी है। ओके, तो ये क्या आउटलाइनर है, इसलिए ये सूटेबल मीन नहीं है, ऐसा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कब मीन सूटेबल होता है, जब फ्लोटिंग पॉइंट है, राउंड फिगर में कोई वैल्यूज मिलता है हमको, दैट विल बी अ सूटेबल मीन। देन मीडियन, मैंने अभी बताया आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। मीडियन में क्या होता है कि एवरेज में 2 मीडियन वैल्यूज रहता है। मीडियन रिप्रेजेंट्स द सेंट्रल वैल्यू एट विच द गिवन डेटा इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया 5 डिवाइडेड बाय 2, 2 ऑन द लेफ्ट साइड, 2 ऑन द राइट साइड, एंड बिटवीन देयर इज वन वैल्यू, सो दैट विल बी अ मीडियन। ओके, सेंट्रल वैल्यू। सो बाद में ऐसे हम लोग ने इसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जिससे कोई मेरे पास डेटा है उसको डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, दैट इज़ ऑड नंबर। तो 5th पोजीशन पे कौन सा है, 102, ये मेरा मीडियन है। ओके, 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद फिर हम देखेंगे मोड। मोड क्या है, मोड इसका एक एग्जांपल देख लेंगे हम। हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, मोड इज 110 एज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस इन द लिस्ट इज 3। 101 3 में, ठीक है, 3 फ्रीक्वेंसी है, 11 एज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस। हाँ, ऑकरेंस फ्रीक्वेंसी कितनी है, 110 की 3 है, 3 बार आ चुका है ना उस लिस्ट में, विच इज़ लार्जर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द वैल्यूज। इसीलिए इसका ये एग्जांपल क्या है, मोड का एग्जांपल है। मतलब जो value of appears most number of times in the given data if an attribute or variable is called as mode। ओके, तो ये मोड हो गया हमारा। मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी, मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी में क्या करेंगे हम लोग, द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेफर टू द स्प्रेड और variations of the values around the mean। they are also called measures of dispersion that indicate the degree of diversity in the data set। ओके, तो मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब क्या, द मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी रेफर टू स्प्रेड और वेरिएशन ऑफ वैल्यूज अराउंड द मीन। मीन जो भी हम निकालेंगे, अभी जो मीन निकाला है हमने, उसमें जितने भी वेरिएशंस होंगे वो सब हम चेक करेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन दैट इंडिकेट द डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी इन द डेटा। कि मेजर करना है उसको, डाइवर्सिटी निकालना है। दे ऑल्सो इंडिकेट डिफरेंस विद इन द ग्रुप, डिफरेंस निकालेंगे ग्रुप में। ओके, 2 डिफरेंट डेटा एग्जांपल में पता चल जाएगा। 2 डिफरेंट डेटा सेट्स कैन हैव द सेम मीन। 2 डेटा है मेरे पास, उसका मीन सेम होगा, मीडियन और मोड सब चेंज नहीं होगा, सेम होगा, बट कब करंटली कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पर्शन और वाइस वर्सा। ये डिस्पर्शन कैसे निकालेंगे हम देखेंगे। कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ऑफ और वेरिएबिलिटी और रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3 चीज़ें। डिस्पर्शन में क्या आता है, वेरिएबिलिटी आता है, रेंज आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। अभी रेंज देखेंगे हम लोग। रेंज मतलब पता है इन बिटवीन, रेंज कौन से रेंज में आ रहा है वो, जैसे वो 10 to 20 के बीच में जो भी अल्फ़ाबेट्स होंगे, दैट जितने भी नंबर्स होंगे 10 to 20 में, दैट आर इन द रेंज ऑफ 10 to 20। ओके, सो ये हो गया रेंज हमारा। उसमें से कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे और फाइनली उसमें से हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ निकालेंगे कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। जिसके अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है, द अबव एग्जांपल मिनिमम हाइट वैल्यू इज 85 सेंटीमीटर, मैक्सिमम हाइट वैल्यू इज 115 सेंटीमीटर, हेंस रेंज इज व्हाट। अभी इसका रेंज कैसे निकाला है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट इज इक्वल्स टू समथिंग सेंटीमीटर, दैट इज योर रेंज। कैसे निकालना आप रेंज, कितने उसके बीच में कितने वैल्यूज है ये हमको निकालना है। ओके, जैसे 10 to 20 में 20 माइनस 10 कितने वैल्यूज है, 10, दैट इज योर रेंज। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे हम, गिवन n वैल्यूज x1 x2 x3 up to xn, so their mean value x बार है, दैट इज ग्रीक लेटर सिग्मा। तो यहाँ पे सिग्मा वैल्यूज क्या है, x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ये सिग्मा वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डेविएशन निकाल सकते हैं हम। लाइक रेंज, इट ऑल्सो मेजर्स द स्प्रेड ऑफ डेटा।
Okay, however, unlike range which only uses two extreme values in the data, calculation of standard deviation considers all the given data. Okay, it is calculated as the positive स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं हम लोग डेविएशन में। जो भी समेशन होगा मेरे पास, मतलब जो भी वैल्यूज होंगे हमारे पास, उस वैल्यू में से क्या निकालेंगे हम लोग समेशन में से x1 माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। ओके, दैट इज ग्रीक लेटर सिग्मा। उसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो ये एग्जांपल में हम लोग निकाल सकते हैं। एक्स बार मतलब मीन होता है, मीन वैल्यू निकालना है हमको। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट x इन सेंटीमीटर, ये कुछ सेंटीमीटर की हाइट दी गई है, x माइनस एक्स बार दिया हुआ है। तो x माइनस एक्स बार दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइट क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है हाइट यहाँ पे, ठीक है। तो 90 माइनस क्या आएगा समेशन में, हाँ 90 माइनस 101.33 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। टोटल n कितना है मेरे पास यहाँ पे, एन दिया हुआ है ना 9, सो डिवाइडेड बाय 9, सो ये आएगा मेरा आंसर। एक्चुअली यहाँ पे क्या दिया, डिवाइडेड बाय एन निकाला ही नहीं है इन लोगों ने, डायरेक्टली स्क्वायर वैल्यू निकाला है समेशन का। तो ये वैल्यू सबके लिए, हाइट के लिए हम निकालेंगे वैल्यूज़, ठीक है। और सारा वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, एन 9 दिया हुआ है, सो एक वैल्यू क्या है मेरे पास यहाँ पे 101.33 एक्स बार है मेरे पास। तो ये मेरा एक समेशन वाला आंसर आया, उसका स्क्वायर वाला आंसर आया। टोटल निकालना है सबका टोटल। यहाँ पे 101 एक्स बार है, एक्स बार की वैल्यू दी गई है ना, एक्स बार इज योर मीडियन 101.33। सो एक्स माइनस एक्स बार निकालना है, दैट इज 0। एक्स किसके लिए, हर एक का एक्स निकालेंगे हम, यहाँ पे हर एक का एक्स दिया हुआ है। फिर समेशन निकालेंगे एक्स का, इसका एक्स का समेशन क्या है टोटल वो निकालेंगे, और फिर वो यहाँ से माइनस करके क्या आएगा, देखो ये समेशन है, ये जो x दिया हुआ है ये x आएगा, टोटल समेशन ऑफ x आएगा ये, और फिर एक x बार दिया हुआ है हमारे पास। तो हर एक का निकालेंगे हम, टोटल दिया हुआ है यहाँ पे, हर एक का टोटल वैल्यू क्या दिया है 90, 102, 110, 115, 85, 90, 100, 110 और 110 दिया हुआ है। तो x बार तो है हमारे पास, n भी दिया हुआ है, तो समेशन कैसे निकालेंगे हम, x माइनस एक्स बार का समेशन निकालना है। तो इसका पूरा टोटल जो है ना, उसका समेशन निकालेंगे हम, पूरा टोटल का ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 9 आएगा। तो ये हो गया मेरा समेशन, ये समेशन हो गया मेरा पूरा x माइनस एक्स बार का 0.03। इसको ऐड करने के बाद एडिशन करना है सबका, एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टोटल 9 आएगा। सो दैट इज व्हाट समेशन, सॉरी x माइनस डिवाइडेड बाय 9 नहीं आएगा यहाँ पे, ये पूरा जो मेरे पास x माइनस एक्स बार है ना, उसका समेशन क्या आएगा 0.03। ओके, 0.03 विल बी योर समेशन, क्योंकि ये माइनस वैल्यूज़ है इसमें कुछ, तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। फिर उसके बाद x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो x माइनस एक्स स्क्वायर देने के बाद क्या करेंगे हम लोग, ये जो वैल्यूज़ है उसका समेशन फिर से निकालेंगे, इसका वैल्यू, इसका पूरा समेशन आ जाएगा। फिर यहाँ पे जो वैल्यूज़ हमको मिलेंगी दैट इज़ 138 डिवाइडेड बाय 9, तो ये एक वैल्यू आएगा। फिर इसका एक डेविएशन निकालेंगे, और फाइनली ये डेविएशन का आंसर आएगा 10.2 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया मेरा मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। चूज द सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड निकालना है इसके लिए। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी वांट्स टू नो अबाउट डिस्पेरिटी इन सैलरीज ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। तो चूज द सुटेबल स्टैटिस्टिकल मेथड, जैसे यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड हमने क्या देखी थी, स्टैटिस्टिकल मेथड क्या देखा था यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है ना डेटा प्रोसेसिंग के। तो वैसे ही इसके लिए क्या निकालेंगे हम, the management of a company wants to know about disparity in salaries of employee की सैलरी निकालनी है, तो एम्प्लॉय आईडी आएगा, एम्प्लॉय नेम आएगा,
ओके। फिर कंपनी नेम आएगा, फिर सैलरी आएगा उसका, यूनिक आईडी का हर एक एम्प्लॉयज़ का। तो इसके लिए हम लोग सब प्रोसेसिंग करेंगे और फाइनली आउटपुट में क्या आएगा, प्रोसेस करते वक्त क्या आएगा सब चेक करना पड़ेगा उसके सारे डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर वगैरह सब, और फाइनली सैलरी सबकी प्रोवाइड की जाएगी। ओके। फिर टीचर वांट्स टू नो अबाउट द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ होल क्लास इन द टेस्ट। तो अब इसके लिए टीचर में सबसे पहले स्टूडेंट आईडी आएगा, स्टूडेंट नेम आएगा, उसके सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आएंगे और फिर एवरेज मार्क्स आएंगे उसके, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे फाइनली हम। और फिर क्या, ये हमारा सब क्या आएगा, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारा एंटिटी आएगा ये। ठीक है, एंटिटी। और फिर हम क्या करेंगे, उसका जो प्रोसेस करने के बाद प्रोसेस क्या करेंगे, हमको उसका एवरेज निकालना पड़ेगा, दैट इज़ ओनली योर मीन। और फिर फाइनली हम क्या करेंगे, उसका आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट क्या आएगा उसका फाइनली, कि जिसमें से जो भी स्टूडेंट पास सबसे ज़्यादा क्लेवर होगा उसका आउटपुट हम निकालेंगे कि उसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट है। ओके। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली टेस्ट का आउटपुट। देन कंपेयर हाइट ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ 2 सिटीज़। ओके। मतलब दो सिटीज़ के रेसिडेंट्स की हाइट कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके। रेसिडेंस 2 सिटीज़ के नाम लेंगे, देन उस सिटीज़ का रेसिडेंशियल फॉर्मेट लेंगे हम लोग, कि उसका एड्रेस वगैरह वो सब आएगा, पिन कोड वगैरह वो सब आएगा। और फिर फाइनली हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद फाइनली आउटपुट क्या आएगा हमारा, कि सबसे कंपेयर दोनों जो सिटीज़ है उसमें से ज़्यादा फार या फिर ज़्यादा किलोमीटर कितना दूर है पर्टिकुलर, दोनों में से कौन सा ज़्यादा दूर है वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट, हमारे हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द डोमिनेंट वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज़। अभी डोमिनेंट वैल्यू फ्रॉम द सेट ऑफ वैल्यूज़, इसमें क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे वैल्यूज़ है उसमें से डोमिनेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू निकालेंगे हम लोग सेट ऑफ वैल्यूज़ से। तो वैल्यूज़ लेंगे हम लोग और फिर लार्जेस्ट वैल्यू डोमिनेंट वैल्यू निकालेंगे हम लोग उसमें से। देन कंपेयर इनकम ऑफ रेसिडेंट्स ऑफ 2 सिटीज़। भाई रेसिडेंट्स ऑफ 2 सिटीज़ का इनकम कैलकुलेट करना है हम लोग। एक एम्प्लॉई है मेरे पास, उसके 2 सिटीज़ है हमारे पास, कोई भी एक कस्टमर होगा हमारे पास, इनकम निकालना है तो हम कस्टमर लेंगे। फिर कस्टमर के 2 सिटीज़ होंगे, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस निकालेंगे, उनका इनकम क्या है वो फाइंड आउट करेंगे, उनकी सैलरी स्लिप लेंगे, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट के बैंक अकाउंट नेम सारी डिटेल्स लेने के बाद कंपेयर करेंगे फाइनली। और आउटपुट फिर क्या आएगा, कंपेयर करने के बाद 2 कस्टमर्स की 2 सिटीज़ है तो उसमें से ज़्यादा बेटर कौन सा आउटपुट दे रहा है, कौन सा इनकम दे रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। फिर फाइंड द पॉपुलर कलर ऑफ कार आफ्टर सर्विंग द कार ओनर्स ऑफ स्मॉल सिटी। पॉपुलर कलर ऑफ कार आफ्टर सर्विंग द कार स्मॉल सिटी है, सर्वे करेंगे कार का, उसमें सबसे पॉपुलर कलर कौन सा है कार का, वो सर्वे करने के बाद फाइनली हम उसका आउटपुट देंगे कि ये कलर का कार है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में है या फिर पॉपुलर है, ऐसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। So it is the important to understand statistical techniques so that one can decide which statistical technique to use arrive at a decision। कौन सी statistical technique हम लोग यहाँ पे use करेंगे वो हम देखेंगे। ओके। सो आप अपने हिसाब से यहाँ पे ले सकते हो, आप जैसे सोचोगे उस हिसाब से आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनेगा, फिर आप कैसे प्रोसेस करेंगे और फाइनल आउट मेरे हिसाब से बता दिया, आप अपने हिसाब से सोच के बता सकते हैं। अभी यहाँ पे एक तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला था, कंपेयर हाइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ 2 सिटी। अभी हाइट मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं अभी इसमें, हाइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ 2 सिटीज़। तो आप कैसे कैलकुलेट करना, 2 सिटीज़ है मेरे पास, एक कस्टमर है मेरे पास, कस्टमर मतलब कंपेयर हाइट ऑफ रेसिडेंस ऑफ 2 सिटीज़, मतलब 2 सिटीज़ है तो हम रह रहे फॉर एग्जांपल मुंबई में रह रहे और मुझे कहाँ जाना है, बिहार जाना है और यूपी जाना है। तो अभी मुंबई से बिहार ज़्यादा पास में या यूपी ज़्यादा पास में, ये इस हिसाब से हम लोग रेसिडेंस फाइंड आउट करेंगे 2 सिटीज़ का। और फिर इस हिसाब से हमारा फाइनली आउटपुट आएगा कि कौन सा ज़्यादा पास में, कौन से हाइट ज़्यादा है।
तो इस हिसाब से हमारा फाइनली आउटपुट लिखेंगे कि बिहार पास में नहीं है, यूपी पास में है, फिर बिहार आता है, तो इस हिसाब से हमारा आउटपुट आएगा। सो ये हो गया हमारा statistical technique हो गया। So different programming tools are available for efficient analysis of large volume of data. These tools make up statistical technique for data analysis. Data analysis के लिए हम statistical techniques use करेंगे। Okay, on such programming tool is Python. So it has libraries specifically built for data processing and analysis. We will covering some of them in the following chapter. अभी data analysis में programming भी देखेंगे हम, इसमें programming नहीं देखे हम data में ना, statistical data में, वो programming हम next chapter में देखेंगे। इसका summary देख लिए थे हम already, ये summary आप पढ़ लेना हो एक बार, ठीक है। पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हम, टोटल इसमें 10 नहीं कितने 9 क्वेश्चन थे, हम एक एक करके देखते हैं। आइडेंटिफाई डेटा रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन टू परफॉर्म द फॉलोइंग सर्विसेज, डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। डेटा कौन सा आएगा वो लिखना है आपको, वो आप लिख सकते हो। अभी इतना आपको डेटा बता दिया है कि एंटिटीज कौन सा लेना है, क्या क्या लेना है, उस हिसाब से आप बताना है। एक बता देती हूँ मैं, डिक्लेयर एग्जाम रिजल्ट एंड प्रिंट ई सर्टिफिकेट। तो इसके लिए कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा? एग्ज़ाम रिजल्ट के लिए एग्ज़ाम सबसे पहले हमारा स्टूडेंट आईडी होगा, स्टूडेंट नेम होगा, सब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, उसके सब्जेक्ट्स के एवरेज मार्क्स होंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर रिजल्ट आने के बाद उसका ई सर्टिफिकेट प्रिंट होगा अलग अलग स्टूडेंट्स का। तो इस हिसाब से आप लोग डेटा, ये सारा डेटा होगा। वैसे ही इन सब चीज़ों के लिए डेटा लेना है आपको, ओके। देन हम देखेंगे सारे 4 ऑप्शन से, 4 आप लिख देना, ठीक है। एक बता दिया मैंने, ऐसे हिसाब से आप डेटा ये अपना एंटिटी एंड एट्रीब्यूट्स परफॉर्म करना, ओके। देन अ स्कूल हैविंग 500 स्टूडेंट्स वांट टू आइडेंटिफाई beneficiaries of the merit cum means scholarship achieving more than 75% for 2 consecutive years and having family income less than 5 lakh per annum. Briefly describe data processing steps to taken by the beneficial prepare of this property. इसमें क्या करना है, 500 स्टूडेंट्स है हमारे पास, wants to identify beneficiary of the merit cum means scholarship fund achieving more than 75% of 2 consecutive years. 2 years में हमको स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनके 75% से ज़्यादा मार्क्स है, हैविंग फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख पर एनम, और उनका इनकम क्या होगा, 5 लाख पर एनम से लेस होगा। सो ब्रीफली डिस्क्राइब डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द बेनिफिशियरी प्रिपेयर ऑफ द लिस्ट। तो उसके लिए हमको लिस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, स्कूल का लिस्ट, और सब लिस्ट बनाएंगे हम। 500 स्टूडेंट्स से आप डेटा लेना, फिर कैसा डेटा लेंगे हम, इसमें से भी हमको क्या करना है, इसमें हमको ब्रीफली डिस्क्राइब डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द बेनिफिशियल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्कूल्स, ओके। तो क्या करना पड़ेगा, लिस्ट ऑफ स्कूल, बेनिफिशियली ब्रीफली डिस्क्राइब डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स टू बी टेकन बाय द बेनिफिशियल प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ स्कूल, ओके। तो स्कूल हैविंग 500 स्टूडेंट्स है, तो आप डेटा लिखना, 500 स्टूडेंट्स है मेरे पास, उसमें से स्कॉलरशिप कितने बच्चों को मिलनी चाहिए जिनको 75 से ऊपर मार्क्स है, 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में, तुरंत 2 ईयर्स में कितने बच्चों को है जिनका फैमिली इनकम 5 लाख पर एनम से लेस होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स है हमारे पास, ये डेटा है हमारे पास। उस हिसाब से आप लोग ये डेटा का प्रोसेस कैसे करेंगे वो लिखना है कि ये सारा डेटा है, प्रोसेस क्या होगा, उसके ऊपर परसेंटेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे हम उसका, फिर परसेंटेज निकालेंगे उनका, ये सारे डिटेल्स हम लोग निकालेंगे। और फिर फाइनली आउटपुट क्या आएगा हमारा, कि फाइनली आउटपुट आएगा कि ये बच्चा जो भी जनरेट होगा आंसर, ये उसका रिकॉर्ड हमारा डेटा स्टोर करके रखेगा, ठीक है। देन फाइनली द बैंक XYZ wants to know about its popularity among the residents of city ABC on the basis of number of bank account each family has and the average monthly account balance of each person. ABC करके हमारे पास एक बैंक है, ठीक है, एंड रेसिडेंस ऑफ सिटी ABC on the basis of number of bank accounts each family has the average monthly account balance of each person. The basis of number of bank account each family has the average monthly account balance of each person, ठीक है। हर एक पर्सन का एवरेज मंथली बैलेंस अकाउंट है हमारे पास, हर एक पर्सन का। ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन फॉर कलेक्टिंग डेटा एंड वांट रिजल्ट्स कैन बी चेक थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ द कलेक्टिंग डेटा, ठीक है। कलेक्ट करेंगे डेटा, फिर रिजल्ट निकालेंगे,
रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग कि जो भी डेटा मेरे पास कलेक्टेड है वो डेटा फाइनली आउटपुट देगा मेरे पास। जैसे एक्स वाई जेड बैंक है मेरे पास, सी टी ए बी सी है मेरे पास, उसमें से जो भी अकाउंट नंबर होल्डर्स रहेंगे उनके नाम आएंगे, उनका बैंक अकाउंट नंबर होगा, उनका एफसी कोड होगा, उसका एज होगा, कुछ उसके ऑलरेडी सैलरी स्लिप होगी, कितना अकाउंट बैलेंस है वो होगा, ये सारे डिटेल्स होंगे हमारे पास। उसके ऊपर प्रोसेसिंग में फाइनली आउटपुट क्या मिलेगा मेरे को, यही सारा आउटपुट मिलेगा कि चेक करेंगे मंथली अकाउंट बैलेंस हर एक पर्सन का। ओके, ये हमारा आउटपुट होगा कलेक्टेड डेटा। ये हमको सिर्फ क्या करना है, डेटा प्रोसेसिंग स्टेप्स लिखना है इसमें भी, ठीक है। कोई भी कोड वेड नहीं जनरेट करना है हमको। तो फाइनली आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड जनरेटेड इन फॉलोइंग सिनेरियो। अभी रिकॉर्डिंग व वीडियो, इसमें टाइप ऑफ डेटा कौन सा आएगा, रिकॉर्डिंग व वीडियो, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आएगा और फिर जनरेटेड इन द फॉलोइंग सिनेरियो डेटा जनरेट। फिर मैं मार्केटिंग अटेंडेंस बाय टीचर, मैं मार्किंग अटेंडेंस बाय टीचर, तभी ये स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। राइटिंग ट्वीट्स, ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, ये भी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। ये सारे हमारे टाइप ऑफ डेटा है बिन कलेक्टेड जनरेटेड। Then consider the temperature in Celsius of 7 days of week as 34, 34, 27. ये सारा data identify the appropriate statistical technique to be used to calculate the following. अभी 7 days a week में मेरे पास ये सारा डेटा है। फाइंड द एवरेज टेम्परेचर, क्या निकालेंगे, इसका मीन निकालेंगे हम लोग, ठीक है। टेम्परेचर रेंज ऑफ द रेंज मैंने बोला है कितने नंबर्स है टोटल, उसमें से मतलब 1 2 3 4 5, जैसे नंबर क्या है मेरे पास 34 और 27 है, मतलब ये रेंज क्या है 22 30 का रेंज है ना, ये मतलब 10 आएगा ना आंसर। दैट इज रेंज ऑफ अ वीक, 7 days ऑफ अ वीक, 1 2 3 4 5 6 7, ओके ये रेंज आ गया। ओके, रेंज क्या बताया मैंने आपको 30 20 20 to 30, 30 minus 20 10। देन फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है और 7 वीक ये सारा टेम्परेचर है, तो फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर। डेविएशन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो डेविएशन मतलब मैंने आपको क्या बताया था, डेविएशन टेम्परेचर मतलब इसमें से मिनिमम टेम्परेचर कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर बोलते हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है मेरे हिसाब से, हमने अभी सीखा था जिसमें हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया था कि जो थ्राइस मतलब कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे रिकॉर्ड में एपीओज होते हैं, उसको हम लोग डेविएशन बोलते हैं। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ 9 स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोगों ने कैसे निकाला, देखो ये ऐसे निकाला है ना, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ 9 स्टूडेंट्स। 9 स्टूडेंट्स का डेविएशन कैसे निकालना है हमको, ये डेविएशन है, हाँ डेविएशन दैट इज समेशन ऑफ x1 माइनस एक्स बार दैट इज मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट इज एन अंडर रूट। ये फॉर्मूला है देखो डेविएशन का, ये डेविएशन का फॉर्मूला आप फाइंड आउट करना, उस हिसाब से आपको डेविएशन मिल जाएगा। तो ये हो गया डेविएशन। उसके बाद स्कूल टीचर वांट्स टू एनालाइज रिजल्ट्स, आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज्ड अलोंग विद इट्स जस्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। तो इसमें क्या है, टीचर वांट्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेविएशन secured by students in class 12th A and class 12th B where the each class strength is same. Okay, the school teacher wants to analyze results. School teacher wants to analyze results. तो रिजल्ट को एनालाइज करना है, आइडेंटिफाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू बी यूज्ड अलोंग विद इट्स जस्टिफिकेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस। स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज करना है हमको फिर से इसमें। ओके, स्कूल टीचर वांट्स टू एनालाइज द रिजल्ट एंड वी नीड टू यूज द स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो इसमें दो ऑप्शन है, टीचर वांट्स टू कंपेयर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेविएशन डिवीजन सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 12th A एंड क्लास 12th B वेयर ईच क्लास स्ट्रेंथ इज सेम। कंपेयर करना है हमको इन टर्म्स ऑफ डिवीजन सिक्योर बाय स्टूडेंट्स इन क्लास 12th A एंड क्लास 12th B वेयर ईच क्लास स्ट्रेंथ इज सेम। ओके, तो इसमें क्या कंपेयर करना है हमको, नंबर इन टर्म्स ऑफ डिवीजन सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स जो है हमारे पास दो, उनमें से उन दो में से हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस कंपेयर करना है दो डिविजन्स में।
ईच क्लास स्ट्रेंथ है, दोनों की क्लास की स्ट्रेंथ 40-40 होगी, तो हमको क्या करना है, कंपेयर करना है, परफॉर्मेंस कंपेयर करना है, कितने तो टोटल मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स है, मार्क्स कैसे, फिर उसका परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका फाइनली परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन, फर्स्ट पार्ट ऑफ ए। बी में क्या है, टीचर हैज़ कंडक्टेड 5 यूनिट टेस्ट फॉर द दैट क्लास इन मंथ्स जुलाई एंड नवंबर एंड वांट्स टू कंपेयर द क्लास परफॉर्मेंस इन दिस 5 मंथ। तो टीचर हैज़ कंडक्टेड 5 यूनिट टेस्ट, 5 यूनिट टेस्ट है हमारे पास फॉर दैट क्लास इन मंथ जुलाई एंड नवंबर, ठीक है, एंड वांट्स टू कंपेयर द क्लास परफॉर्मेंस इन दिस 5 मंथ। ये 5 मंथ में क्लास परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना और फाइनली हमको रिजल्ट देना है, फिर क्या रिजल्ट आएगा वो, ठीक है। ये भी हमारा डेटा है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक देना है यहाँ पे। बाद में क्या आएगा, सपोज एनुअल डे ऑफ योर स्कूल इज टू बी सेलिब्रेटेड, द स्कूल हैज डिसाइडेड अ felicited those parents of the students studying in classes 11th and 12th who are the alumni of same school. In this context answer the following. Suppose annual day है मेरे पास स्कूल का, सेलिब्रेट करना है हमको, तो the school has decided to felicitate those parents of the students studying in classes 11th and 12th who are the alumni of the same school. In this context answer the following, ठीक है। तो क्या करना है, देखो इसमें हमारे पास 2 क्लासेस है, उसका एनुअल डे फंक्शन है, उसको सेलिब्रेट करना है हमको, ठीक है। तो उसके लिए हमको कुछ क्वेश्चंस दिए, विच स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुड बी यूज टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद बोथ पेरेंट्स एंड एलुमनी ऑफ दिस स्कूल। अभी कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुज बोथ पेरेंट्स आर एलुमनी ऑफ दिस स्कूल। तो यहाँ पे भी बोथ पेरेंट्स है ना, तो कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे टू फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं हमको टोटल, मतलब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो सारे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिस्ट होगा हमारे पास स्टूडेंट्स का, जिसके अंदर उसके जो पेरेंट्स है वो एलुमनी ऑफ द स्कूल है, स्कूल के एलुमनी होंगे वो, ऐसा हमको एक कंडीशन डिक्लेयर करना पड़ेगा। और फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड आउट करेंगे कि ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन सी है। मेरे हिसाब से ये मीन एक है हमारे पास, एक मीडियन है हमारे पास, एक मोड है, राइट। तो ये मोड होगा शायद मेरे हिसाब से, कौन सा मोड होगा ये, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक शुड बी यूज्ड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद बोथ पेरेंट्स आर एलुमनी ऑफ द स्कूल। ओके, मोड फाइंड आउट करेंगे हम लोग, मोड इज इक्वल्स टू पेरेंट्स आर एलुमनी ऑफ द स्कूल। Then how varied are the age of parents of the students of that school? How varied are the age of parents of the students of that school? Age of parents of the students of that school, मतलब पर्टिकुलर एज फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए भी एक कंडीशन होगा कि पेरेंट्स का एज हमको दिया हुआ रहेगा स्टूडेंट्स का उस स्कूल का, तो उसका वेरिएशंस होगा, हर एक स्टूडेंट्स का एज वैरिड दिया है, तो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कौन सी दी है वो मैं एक बार आपको ठीक फिर से बता देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो स्टैटिस्टिकल टेक्निक दिया हुआ, ये तो नॉर्मली हमारा प्रोसेसिंग है, ये प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट है, फिर मेजर सेंट्रल टेंडेंसी बताया मैंने आपको, ये भी बताया था मैंने आपको, मीन और एक मोड मीडियन भी बताया आपको, फिर मैंने मोड बताया था, तो वो मोड हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। फिर मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिड बताया ना मैंने आपको, रेंज बताया था इसमें, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब कैलकुलेट करेंगे हम लोग यहाँ पे रेंज में, ठीक है। रेंज का एक एग्जांपल अभी मैंने बताया आपको, कौन सा बताया, वेरिड बताया ना, स्कूल और द एज ऑफ पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, तो वेरिड मतलब वेरिएशन आएगा उसमें। Then for the annual day celebration, the teacher is looking for an anchor in the class of 42 students. The teacher would make selection of an anchor on the basis of singing skill, writing skill, as well as monitoring skill.
तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से 42 स्टूडेंट्स का हम लोग कैलकुलेट करेंगे एंकरिंग वगैरह बेसिस। विच मोड ऑफ द डेटा कलेक्शन शुड बी यूज, ये हम देख लेंगे कौन सा मोड यूज़ करना है हमको डेटा कलेक्शन का, कौन सा मोड यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। 3 अलग अलग है ना। विच मोड ऑफ द डेटा कलेक्शन शुड बी यूज 42 स्टूडेंट्स में से। एंकरिंग करना है हमको सिंगिंग का, anchoring on the basis of singing skill, writing skill as well as monitoring skill. So which mode of data collection should be used? डेटा कलेक्शन कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे। फिर हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स एज द डेटा, हाउ वुड यू रिप्रेजेंट द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स एज डेटा, मतलब स्किल ऑफ स्टूडेंट हाउ वुड यू रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब 42 स्टूडेंट्स है तो हम लोग क्या दिखाएंगे, यहाँ पर मोड दिखाएंगे, मोड सिंगिंग का है, मेरा राइटिंग का है कि मॉनिटरिंग का है, वो दिखाएंगे हम लोग। मोड ऑफ डेटा कलेक्शन दिया है, शुड बी यूज, विच मोड ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारे डेटा कलेक्शन यूज़ करेंगे, एंकरिंग, सिंगिंग, राइटिंग एज वेल एज मॉनिटरिंग स्किल, दिस मोड ऑफ डेटा कलेक्शन इज यूज्ड। ओके, ये सब क्या है, मेरा डेटा है ना मेरे पास, ये 42 स्टूडेंट्स का डेटा है। ओके, तो आप बता देना, ठीक है। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा गिविंग बाय द एग्जांपल। The principal of school wants to do following analysis on the basis of food items procured and sold in the canteen. Principal of a school wants to do the following analysis on the basis of food items procured and sold in the canteen. Okay. स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दिया गया है मेरे पास। ओके, तो हमको क्या करना है, द प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल वांट्स टू डू फॉलोइंग एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फूड के बेसिस पे हमको करना है ये सब कि कैंटीन में कैसे बेचा जाएगा वो फूड। ओके, उसको एनालाइज करना है। कंपेयर द परचेस एंड सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूस एंड बिस्किट, कंपेयर करना है हमको सेलिंग प्राइस ऑफ फ्रूट जूस एंड बिस्किट, देन कंपेयर सेल्स ऑफ फ्रूट जूस बिस्किट एंड समोसा। ये सारी चीज़ें कंपेयर करनी है हमको यहाँ पे। ओके, ये सारा डेटा है हमारे पास। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा, उसको डिफरेंशिएट करना। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, स्कूल है हमारे पास, स्कूल का प्रिंसिपल है, वो फूड आइटम प्रोड्यूस कर रहा है, सोल्ड कर रहा है कैंटीन में, ये सब डेटा है मेरे पास। कौन सा डेटा है, ये सब स्ट्रक्चर डेटा होगा वो सब। फिर कंपेयर परचेस एंड सेल प्राइस, ये सब एक्सेल में आएगा, तो ये भी मेरा स्ट्रक्चर डेटा हो गया। कंपेयर करने के बाद ये भी स्ट्रक्चर डेटा हो गया एक्सेल वाला। देन वेरिएशन इन सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉर सम क्वांटिटी इन ml, सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉर सेम क्वांटिटी। तो ये क्या आएगा, वेरिएशन इन सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉर सेम क्वांटिटी इन ml। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएशंस इन सेल प्राइस। तो वेरिएशंस इन सेल प्राइस ऑफ फ्रूट जूसेस ऑफ डिफरेंट कंपनीज फॉर सेम क्वांटिटी इन ml। तो हमारा यहाँ पे वेरिएशन आ गया अलग अलग, तो ये वेरिएशन जो होगा वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में आ जाएगा। जैसे क्रिएट एन अप्रोप्रिएट डेटा सेट फॉर दिस आइटम्स फ्रूट जूस बिस्किट समोसा बाय लिस्टिंग देयर परचेज प्राइस एंड सेल प्राइस, ठीक है। देन अप्लाई बेसिक स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू मेक द कंपैरिजंस करना है यहाँ पे हमको, ठीक है। एप्रोप्रिएट डेटा सेट ऑफ द आइटम्स, कंपैरिजन कर दिया हमने, तो ये हो गया हमारा फाइनली कंपेयर होने के बाद ये हो गया हमारा कंपैरिजन। ओके, ये सब समझ में आ गया आपको। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, अदरवाइज यू कैन कॉल मी द ऑन नंबर 9696326086. I will give you the special answers for these questions. Okay, thank you so much for this lecture. That's it for today.